Assalamu alaikum, dear students. Now you have joined the session of FCS second year. Now today I will start the programming in C++ chapter 3rd. Now let we start. First, what is commuter program? First, the definition of commuter program. Then we will see the definition of header files, reserved words, constants and variables used in these program. What is commuter program? Commuter program is a set of instructions that perform a specific task when executed by a commuter. Okay. Second, generally programs are written in high-level language, Visual Basic, Pascal, Java, C++, etc. And third, compiler, assembler or language translator. कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है. Every computer system consists of two things. Number one, software, and number two, hardware. Software is basically the set of instruction given to the computer to perform the specific task. Computers को हम instruction देते हैं, इस वजह से computer हमारे काम perform करता है. वो instructions, set of instruction उसको program कहते हैं, and the collection of program is known as the software. और ये software hardware के ऊपर run होता है और hardware को execute करता है. जनरली जो आज प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिस तरह विजुअल बेसिक है, पास्कल है, जावा है एंड सी प्लस प्लस. थर्ड इज, अब लैंग्वेज देयर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर वर्किंग बिहाइंड दीज थिंग्स. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है. यू शुड नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज which is in the form of 0 1. So when we write the program in the high level language Pascal, Java, C++, then the compiler, assembler and translator convert these high level language into machine language and vice versa. Okay. What is C++ program? In this session we will study the C++ programming, and in this chapter we will start the initial basic programs. What is C++ program? C++ is general purpose programming language that supports modern programming techniques such as OOPS or object oriented programming. First, it was developed in 1980 at Bell Laboratories. Second, it is used for developing high commercial software, games and graphic related programs. We will study about the C language, and C is basically the structured language, and C++ is the advanced form of the superset of C, and C++ is known as the object-oriented programming language. And in this session, in this class, we will study about C structure language. We will study the basic structure of the C. And in FCS second year, because this is the FCS second year, so we will study about the C++, object-oriented programming language. What are the header files? The C++ contains many header files. C++ लैंग्वेज का आगे हम इसका जनरल सिंटैक्स देखेंगे. C+ लैंग्वेज में एक मेन फाइल होती है, लेकिन C++ लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि ऊपर इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स को. मैथ्स की हेडर फाइल अलग होगी, ठीक है. इसी तरह इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल अलग होगी, ठीक है. मॉनिटर के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हेडर फाइल्स अलग होगी. तो इन तमाम की जो हेडर फाइल्स, वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर तमाम कोड होता है उस स्पेसिफिक इवेंट को डील करने का, इनपुट आउटपुट को डील करने का सारा कोड उसकी हेडर फाइल में मौजूद होता है. हम जस्ट उस हेडर फाइल को साथ ऐड करते हैं, और इसका मेथड क्या है? इट हैज .h एक्सटेंशन. इसकी एक्सटेंशन होती है .h. हम जस्ट उसको ऐड करते हैं, आगे हम देखेंगे, और वो हेडर फाइल साथ ऐड हो जाती है. और अब हम उस हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद जितनी भी कमांड्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम में, जिसे हम सी आउट सीन को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी प्रोग्रामिंग में. Some examples of header files are iostream.h. And iostream.h किस लिए होती है? इनपुट आउटपुट. इसमें लिखा io mean input output stream.h. .h mean header file. अब हम सी इन सी आउट यूज करेंगे,
इनपुट आउटपुट के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे हमें उसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उसका कोड जो है ना वो ऑटोमेटिकली iostream.h में लिखा हुआ होगा, उसका कोड ऑटोमेटिकली iostream.h में लिखा होगा। उसके बाद सेकंड थिंग ये conio.h। conio.h में गेट ch फाइल जो हम आउटपुट डिस्प्ले होती है मॉनिटर के ऊपर, उसका कोड जो है वो conio.h में लिखा होता है। एंड मैथ के तो हम फंक्शन यूज करते हैं स्क्वायर रूट के, इन्वर्जन के, उसके तमाम का कोड जो है वो math.h में लिखा होगा। सेकंड फोर्थ पॉइंट है दीज फाइल्स आर इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++ प्रोग्राम। ये फाइल जो है वो C++ की लाइब्रेरी प्रोग्राम में स्टैंडर्ड उसमें इंक्लूड होते हैं, जस्ट हमने उनको शामिल करना था। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लिखते हैं, ये शुरू में ये हैश साइन है, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, ये शो करता है कि ये हेडर फाइल्स है। उसके बाद इंक्लूड का एक रिजर्व वर्ड है, उसके बाद iostream.h। अब इसका मतलब है कि iostream.h मींस कि ये वो फाइल हम ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट कमांड्स है, इसके बगैर हम ना इनपुट कर सकते हैं ना आउटपुट। नेक्स्ट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो आपने शुरू में हैश साइन देखा है, मैं दोबारा आता हूं इधर। iostream.h फाइल हम जब ऐड करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कमांड भी दे सकते हैं और सी इन सी आउट दोनों कमांड दे सकते हैं। और हैश साइन का मतलब हैश साइन ये शो करता है कि ये जो हम फाइल ऐड करने जा रहे हैं, ये कंपाइलर को डायरेक्शन देता है कि ये फाइल जो है ये हेडर फाइल्स हैं और ये ऑलरेडी सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में उसमें ये मौजूद है। अब व्हाट इज हैश साइन? इट इज नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। First, it is used to include a header file at the beginning of program. It is used to include a header file at the beginning of a program. Second, it begins with a hash sign followed by the word include and then the name of header file. Third, for example, hash include math.h. The math.h header file contains code for performing mathematical functions such as finding the square root of a number. अभी it begins with a hash sign. ये hash sign से start होता है followed by the word include, और शुरू में include word होगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल। अगर हमने मैथ्स डॉट एच, अगर हमने स्क्वायर रूट, इन्वर्जन, साइन, कॉस, थीटा हमने अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द मैथ डॉट एच फाइल। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। द मैथ डॉट एच हेडर फाइल कंटेन्स कोड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शन सच एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, if we have to find the sine theta, if we have to find the cos theta, so we have and different mathematical function, then we should use math.h header file in our program. How we will use it, ये प्रोग्राम ये कैसे यूज होंगी, प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये सारी चीजें अब आस्ते आस्ते आगे आएंगी। अभी देखें स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। नाउ कम टू द बुक, पेज नंबर 43। sorry, first reserve words, page 42, page 42, reserve words. What are the reserve words? Reserve words are special words which are reserved by a programming language for specific purpose in program. These cannot be used as variable name. Some example of reserve words are as follow: if, void, break, while, case, character, double, continue, delete, etc. ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेशल मीनिंग्स है, जिस तरह सी आउट कमांड्स के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं, सी इन कमांड के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसी तरह उसमें वो लूप्स के लिए जिस तरह वाइल है, फॉर लूप है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं जिस तरह इंटीजर है, कैरेक्टर है, तो वो वर्ड्स, ये कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका कोड या जिनकी मीनिंग जो है ना वो प्री डिफाइन है। कंपाइलर प्रोसेसर को पता है कि इन वर्ड्स का क्या है, कैरेक्टर की बिहाइंड वो कैरेक्टर उठाएगा, इंटीजर के बिहाइंड वो इंटीजर उठाएगा, डिलीट का रिजर्व वर्ड है, कंपाइलर नोट दैट आप इस लाइन को डिलीट करना। तो इन रिजर्व वर्ड्स को, इनकी एक तो मीनिंग स्पेशल होते हैं और इनको हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेजेस में जितना भी हम काम करते हैं वो हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। सी लैंग्वेज में हम जितना काम करते हैं वो सी प्लस में वो वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वेरिएबल में मुख्तलिफ डाटा असाइन किया जाता है, उन वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होती हैं, उसमें मुख्तलिफ फार्मूले लगाए जाते हैं।
जितना भी सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग का काम होता है उसमें वेरिएबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि वेरिएबल्स के लिए भी कुछ लिमिटेशन है कि आप हर वर्ड को आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अब ये जो बुक में पेज 42 के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं रिजर्व वर्ड्स की, कि उसमें देखें कि लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स है, ये आप इन वर्ड्स को आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आपने वेरिएबल लेना है तो इनसे हट के आप वर्ड वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे। अच्छा, हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है? A C++ program has the following structure. First hash sign include iostream.h। ये हर C++ के प्रोग्राम में ये iostream इसलिए ऐड होगी। अब देखें ये iostream इनपुट आउटपुट के लिए नीचे हमने सी आउटपुट के लिए कमांड यूज कर रहे हैं जिसमें डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो जस्ट इसकी आउटपुट लिखी आ जाएगी, इस मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट लिखी आ जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ये सिर्फ एक स्ट्रिंग वर्ड जो कांस्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो एक जो सेंटेंस में दो वर्ड्स हैं, इनको सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में इनको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, ये इसको डिस्प्ले करेगा। आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। अब क्या होगा कि जब इस आउटपुट को रन होगी तो ये कांस्टेंट जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये जो है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें देखें कि अब मेन प्रोग्राम में वाइड मीन के अभी इसकी डाटा टाइप नहीं है। मेन की डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी हम जो डाटा हम यूज करते हैं उसमें। अभी अभी मेन कुछ वाइड मीन की मेन इज रिटर्निंग नो। मेन ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर सी प्लस प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है और इसके बगैर सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। इस ये एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। अब मेन के बगैर प्रोग्राम नहीं होता। इस वक्त मेन के अंदर एक स्टेटमेंट है जो कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है? आप तमाम स्टूडेंट्स की अभी एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप सब स्टूडेंट्स ने यू हैव टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस ऑन योर लैपटॉप और पीसीस। सेकंड, आप सबकी एक्टिविटी है कि यू हैव टू राइट द प्रोग्राम गिवन इन बुक। पेज 43 पे जो प्रोग्राम है वो आपने लिखना है। अब पेज 43 पे यही प्रोग्राम है जो मैंने भी आपको बताया, उसको आपने कंपाइल करना है और रन करना है। और इन दोनों कंपाइल और रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 है और फिर आपने उसकी आउटपुट जो है वो यू हैव टू सी इट्स आउटपुट ऑन नोटबुक। आपने इसकी आउटपुट अपने देखनी भी है, कंप्यूटर को भी देखनी है और उस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसकी आउटपुट जो है वो उसको आपने मेंशन करना है कि इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि फर्स्ट वो टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करें और इस प्रोग्राम को लिखें और जस्ट कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा एंड यू हैव टू राइट इट्स आउटपुट ऑन योर नोटबुक। टुडे इट इज एनफ, बाकी हम बाद में करेंगे। वी एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी।